about the Matilda. And Matilda was a woman who belongs to a मिडिल क्लास फैमिली, है ना. मुझे क्या पता था कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी. एंड she wanted to have a jewelry, she wanted to spend a life like a elite class, and her husband was a clerk, and she wanted to go to that party. जसप्रीत क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको? बेटा आपने इसको बोलो तो ऊपर से बताने की मेरे हमारा में दे रही है नदी को So beta, what have we read? We have read about the Matilda. She was a woman who belongs to middle class family, and she wanted to join the ball where her husband was invited, and she didn't have a beautiful dress and a beautiful jewelry, so she demanded for it, है ना. And she borrowed it from her friend. वो अपने friend से borrow करती है, ये हमने पढ़ा था, है ना. And when she borrowed from her friend and she went to the party, she enjoyed a lot. She looked very attractive. She wanted to attract all the people who were there in the party, है ना. ये सब हमने पढ़ा था कि जो लोग वहाँ पे थे वो वहाँ पे enjoy करना चाहते थे. और फिर then they were returning and she lost her necklace. वो अपने necklace को lost कर देती है. And when she undressed herself in the room and she looked for the necklace, and then they were asking from each other that where did they lost the necklace, है ना. वो सारा डिस्कशन करते हैं कि कहाँ पे गिर गया होगा, वो उसके लिए ढूंढते हैं. तो वहां से चैप्टर आगे स्टार्ट कर रहे हैं. Yes, I felt it was came out. But if we had lost in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. कि जो कैब हमने ली थी, है ना, हो सकता है वहाँ पे स्ट्रीट में गिर गया हो. फिर वो कहती, मटिल्डा कहती है कि गिरा होता तो मैं सुनाई भी देता. Yes, it is possible. Did you take the number? क्या आपने उस टैक्सी का नंबर लिया? No. And who did you notice? What is was? No. मैंने भी नोटिस नहीं किया. They looked at each other. वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं. Utterly cast down, है ना. और वो cast down का मतलब very sad. She became very sad. Finally, Liesl raised himself and angrily said, "Over the track where we went on foot to see if I can find it." And he moved on the same place from where they came. वापस कहीं पे जाता है, वहाँ से वो आए थे. And he went. She remained in her evening gown and not having the force to go to bed. वो सो भी नहीं पाती. Towards 7 o'clock, her husband returned and he had found nothing. उसके husband वापस भी आ जाते हैं और उसके पास कुछ भी नहीं होता. He went to the police and the cab officers and put an advertisement in the newspaper offering a reward. अब क्या करते हैं? They went to the police. पुलिस के पास जाते हैं और जो है they gave advertisement in the newspaper and they offer a reward भी देते हैं कि जिसको भी मिले. She waited all the day in the statement of the bewilderment, and before this frightful disaster, Liesl returned in the evening, his face pale and he had discovered nothing. और उसे कुछ भी नहीं मिलता. बहुत डर जाता, उसका फेस बिल्कुल पेल हो जाता है. He said, "Write to your friend that you have broken that clasp of the necklace and you will have it repaired, then will give us time." She wrote as he dictated. वो क्या करते हैं, उसके हस्बैंड क्या बोलते हैं कि ऐसे करो कि जो आपकी वो फ्रेंड है उसको हम क्या करते हैं, एक नोट लिख देते हैं, है ना. नोट लिखने के बाद
कि हम उसका जो है उसका एक लास्ट हमसे टूट गया, हम उसको रिपेयर करके आपको वापस कर देंगे। और वैसे ही सेम जैसे उसके हस्बैंड बोलते हैं वैसे ही वो सेम क्या करती है, वैसे लेटर लिख देती है। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसे जैसे उसके हस्बैंड बोलते हैं वो लेटर लिखती है। एट एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, है ना। शाम तक बिल्कुल ही एक हफ्ता निकल गया, उन्हें सौ बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी कि हाँ अब हमें नेकलेस नहीं मिलेगा। एंड लाइसल ऑर्डर बाय 5 years डिक्लेयर वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, कि हम उस ज्वेलर को जो हमसे टूट गया उसे रिप्लेस कर देंगे। हम वो क्या करते हैं, एंड दे स्टार्टेड थिंकिंग टू बाय अ न्यू वन, कि ऐसे करते हैं हम नेकलेस तो वापस करना ही है, ऐसे करते हैं न्यू ले लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन द शॉप ऑफ द पैलेस वाइल दे फाउंड अ चॉकलेट ऑफ डायमंड्स व्हिच सीम्ड टू बी सम exactly like the one they had lost. It was valued all 40,000 francs. They could get it 36,000. अब क्या होता है, उनको सेम नेकलेस मिल जाता है और उसे वो परचेज भी कर लेते हैं 36,000 में। ठीक है, लाइसल possessed 18,000, अब उसके पास कितने हैं, सिर्फ 18,000 है ना, लेकिन चाहिए कितने, 36 चाहिए। which his father had left him, जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़ी थी। he borrowed the rest, उसने बाकी पैसे क्या किए, बोरो कर लिए, किसी से उधार ले लिए। he made various promises, took money from the users and the whole race of lenders, lenders से उसने पैसे लिए, है ना, कि लौटा दूंगा। देन वेन टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर वो क्या करते हैं, न्यू नेकलेस लेने के लिए जाते हैं। डिपोजिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर, तो वो क्या करते हैं, डिपोजिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रांस क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और वो नेकलेस ले लेते हैं। When Ma'am Rifle looked back the jewel to Ma'am Foster, the letter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." अब क्या होता है कि जो मैम फॉस्टर होती है जिसने उसने बोल दिया था, वो उसे लेटर लिख देते हैं कि अब मुझे जल्दी से अभी तक रिटर्न कर देना चाहिए था क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे बोल देते हैं कि मुझे अपना नेकलेस वापस चाहिए। वेट बेटा, okay, there is nothing problem. Yes. अब नेक्स्ट क्या होता है, Ma'am Foster didn't open the jewel box as Ma'am Weiser feared that she would, है ना। और जो ज्वेल बॉक्स है वो मैम फाइस्टर जो है वो नहीं खोलती है ना, लेकिन जो वाइसर होती है उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा हो रहा है। But would she think if we should recognize the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? अब वो क्या सोच रही है कि अगर उसने रिसीव का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना, पहचान लेना, कि अगर उसने उस सब्स्टिट्यूट को, उस दूसरे नेकलेस को जो हमने बना लिया, तो वो क्या बोलेगी, क्या वो मुझे रॉबर के पास ले जाएगी, है ना, कि मैंने उसको चुरा लिया। मैम राइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब क्या हुआ, उसे अच्छे से पता चल गया था कि एक हार्ड वर्क वाली लाइफ कैसे होती है। शी डिड हैव पार्ट however completely heroically, मतलब bravely, it was necessary to pay the frightful debt. debt होता है बेटा कर्जा, है ना, जो उसके हस्बैंड ने पैसे लिए थे अब वो वापस भी तो करने हैं ना कैसे भी, है ना। तो वो बहुत ज्यादा उसकी लाइफ जो है हार्ड स्ट्रगल वाली स्टार्ट हो जाती है। शी वुड पे इट, उसने पे भी करना होता है। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग, दे रेंटेड सम रूम इन द एटिक, और वो एक सर्वेंट क्वार्टर में रहना स्टार्ट कर दिया। उनके पास एक मेड जो थी वो भी जा चुकी थी, है ना, और उन्होंने अपना घर चेंज कर लिया था। शी लर्नड द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, किचन का काम उसने अच्छे से ओवर काम करना स्टार्ट कर दिया था। सारा दिन बर्तन वॉश करती थी, है ना, जो टेबल क्लॉथ था सब सब अच्छे से करती थी।
where she hung on the line to try, she took down to refuse to the street, each her breath. वो घर से बाहर निकलना, पानी लेके आना, है ना, और एक दूसरे के घर वापस जाना, भूल चुकी थी कि सांस भी कैसे लेते हैं। उसने ऐसे लोगों के लिए एज अ मेड काम करना स्टार्ट कर दिया था। एंड क्लोथ लाइक अ वुमन ऑफ पीपल, शी वेंट टू द grocers, the butchers and the fruiters with her basket on her arm, shopping and haggling to the last so often miserable money. पैसा उतारने के लिए वो किस किस के पास जाती है, काम करती है, वर्क करती है, हार्ड वर्क उसका स्टार्ट हो जाता है। Her husband worked evening, putting the books of some merchants in order. Night we often did copying at the 5 sous a page. उसके हस्बैंड भी ओवरवर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, शाम को आके अपना बुक्स भी करते हैं, थोड़ा रीड भी करते हैं, और बहुत ज्यादा वो काम दोनों करते हैं। देन लाइफ लास्टेड फॉर 10 years. ऐसे ही उनके 10 years स्पेंड हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड, और 10 ईयर के बाद वो उतना पैसा जुटा पाती है। मैम वाइजल seemed old now, अब वो ओल्ड लगने लग गई, है ना, एज हो गई। She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. अब वो एक strong, एक hard working woman बन चुकी थी, जैसे एक poor household की लेडीज होती हैं, ऐसी अब वो क्या कर चुकी थी, बन चुकी थी। Her hair badly dressed, उनके जो उसके जो हेयर थे वो भी अच्छे से ड्रेस नहीं होते थे, और उसकी जो स्कर्ट्स थी, है ना, वो भी फट चुकी थी, उसके हैंड्स रेड हो चुके थे काम करके, और वो जब भी बोलती बहुत लाउड वॉइस में बोलती थी, ठीक है। And wash the floor with a large pail of water, but sometimes when her husband was the office, she would seat herself before the window and think of the evening party of former times, है ना, जब भी वो उसके हस्बैंड चले जाते घर पे बैठ के बस ऐसे ही सोचती रहती, और उस पार्टी के बारे में जिसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। आज फ्लैटर होता है अप्रिशिएटिंग, जिस पार्टी में लोग उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, वो ये सब सोच रही है ना, कि वो भी एक टाइम था कि जब मैं इतनी ब्यूटीफुल हुआ करती थी, आज मेरे पास इतना पैसा भी नहीं रहा, ब्यूटी भी नहीं रही, है ना, इतना काम करना पड़ रहा है उसे। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, क्या होता, क्या वो इस वैसे ही होती अगर उससे वो नेकलेस लॉस्ट ना होता, हु नोस, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, हाउ फुल ऑफ चेंजेस, सोची जा रही है कि कैसे एक मेरी लाइफ बिल्कुल ही ज्यादा चेंज हो गई, कैसे एक बिल्कुल छोटी सी चीज ने मेरी पूरी लाइफ जो है विन कर दी, खराब कर दी। वन संडे शी वाज टेकिंग अ वॉक इन द, एक संडे वो क्या कर रही थी, एक वॉक के लिए जा रही थी, है ना, जो चैम्प्स एलिस लिखा है तो प्लेस का नाम था, अपने काम के लिए जा रही थी, और उसे वहां पे एक चाइल्ड के साथ एक वुमन वॉक करती हुई मिली। इट वाज मैम फेस्टर। वो कौन होती है, मैम फेस्टर होती है, जिसने उसने नेकलेस बोरो किया था। स्टिल यंग, अभी वो बहुत यंग थी, स्टिल प्रेटी, अभी भी प्रेटी थी, बहुत अट्रैक्टिव भी थी, और जो मैम वाइजल थी वो देख के हैरान रह गई। शुड शी स्पीक टू हर, कि क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? यस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। नाउ दैट शी हैड पेड, क्योंकि अभी तो उसने पे भी कर दिया। शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट, वो सोचती है कि क्यों ना उसे सारी सच्चाई बता दूं। शी अप्रोच्ड हर, उसके पास जाती है। गुड मॉर्निंग जैन, उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसके फ्रेंड उसे पहचानते ही नहीं। एंड वाज एस्टोनिश्ड टू सी, उसे देख के हैरान रह जाती है कि उसने इतनी फैमिलियर ड्रेस पहनी रहती है। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, है ना, कि आपको कोई मिस्टेक हो गई। नो आई एम मटिल्डा, वो कहती है मैं मटिल्डा हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ अस्टनिशमेंट, वो हैरान होके बोलती है, ओ माय पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम इतनी चेंज कैसे हो गई, है ना, वो उससे पूछती है। yes I have yes I have had some hard days since I saw you, वो कहती कि हाँ मेरे पे बहुत बुरा समय आया था, बहुत बुरे दिन आए थे मेरे पे, बस all because of you, सिर्फ तेरे करके, है ना, सिर्फ तेरे रीजन के कारण मेरे साथ ये सब हुआ। because of me, वो कहती अच्छा मेरे कारण, how is that, लेकिन कैसे? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to me minister's ball, तुझे याद है कि तूने मुझे डायमंड नेकलेस दिया था एक मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए? वो कहती हाँ यस यस मुझे याद है। हाउ इज इट सिंस यू रिटर्न्ड इट टू मी,
कि वो तो तूने मुझे वापस कर दिया था, आई रिटर्न अनदर टू एग्जैक्टली लाइक इट। वो कहती नहीं, मैंने वो नहीं वापस किया था, उसके जैसा सेम परचेज करके वापस किया था। इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। उस नेकलेस के लिए मुझे 10 साल पे करना पड़ा। यू कांट अंडरस्टैंड दैट इट वाज नॉट इजी फॉर अस हु हैव नथिंग। तुम्हें पता है कि हमारे लोगों के लिए इतना इजी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। बट इट इज फिनिश्ड। अब मैंने अच्छे से सारा पैसा दे दिया। आई एम कंटेंट। अब मैं सेटिस्फाई हूँ कि हाँ, मैंने वो 10 साल उसके लिए जो डेट लिया था, कर्जा लिया था, मैंने चुकाया। मैम फ्राइस्टर स्टॉप शॉर्ट। वो हैरान रह जाती है। शी सेड, यू से यू हैव बॉट डायमंड नेकलेस फॉर रिप्लेस माइन। वो कहती है, अच्छा तो तूने फिर नेकलेस जो था डायमंड का लिया था मेरा रिटर्न करने के लिए? यस, यू डिडंट परसीव इट देन। वो कहती है, अच्छा तुझे पहचान नहीं आई? दे वर सेम लाइक। वो कहती हाँ, सेम ही था। एंड शी स्माइल विद प्राउड। वो प्राउड करके स्माइल करती है फ्राइस्टर, और कहती, मैम फ्राइस्टर was touched and took both her hands. She replied, oh my poor Matilda, mine was false. मेरा नेकलेस तो नकली था। They were not worth over 5,000 francs. वो 5,000 फ्रांस से ज्यादा बड़ा नहीं था। उसकी प्राइस कितनी थी? सिर्फ 5,000 फ्रांस थी, और तूने उसको पे करने के लिए 10 साल लगा दिए, है ना? वो तो नकली था, वो रियल नहीं था। ठीक है, सो दिस इज द होल समरी ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में बेटा हमने मैटिल्डा के बारे में पढ़ा है ना, और हमें जो इस चैप्टर का कंक्लूजन है वो क्या मिल रहा है? दैट वी शुड बी कंटेंट एंड सेटिस्फाइड विद आवर बिलोंगिंग्स एंड नॉट क्रेव फॉर एक्सपेंसिव आइटम्स। जो है उसमें खुश रहो, सेटिस्फाइड रहो, ज्यादा महंगी चीजों को अफोर्ड करने की कोशिश भी मत करो, है ना? यही सीखते हैं ना हम। और जो हमारी एक्सट्रीम डिजायर है टू गेन समथिंग लीड्स टू अनहैप्पीनेस। जो हमारी इच्छा है, किसी डिजायर है किसी महंगी चीज को परचेज करने की, तो वो हमें अनहैप्पीनेस देगी। सो दिस इज द समरी। तो इस चैप्टर में बेटा हम और कौन से थीम्स जो हैं जो हमें पता चलते हैं? सबसे पहले तो हमें ग्रीड के बारे में पता चलता है ना, कि जो मैटिल्डा थी वो कितनी ग्रीडी थी। वो शी वांटेड टू लिव अ लाइफ ऑफ लग्जरी ब्लाइंड। कैसी लाइफ जीना चाहती थी? कि बहुत लग्जरी हो, पैसा हो, वेल्थ हो, स्टेटस हो, है ना? ग्रीड था उसके मन में, ग्रीड में उसने क्या कुछ कर लिया। सेकंड हमने क्या देखा? डिसेप्टिव अपीयरेंस। डिसेप्टिव अपीयरेंस होती है बेटा जो हमारी रियल में पर्सनालिटी नहीं होती है ना। वो अपनी अपीयरेंस कैसी बनाना चाहती थी जो वो है ही नहीं थी रियल में। बॉल में जाके, पार्टी में जाके ऐसे लोगों के साथ रहना चाहती थी जो लोग उसके जैसे, उसे लगे कि मैं और लोगों की जैसे ही हूँ। जो रिलेटिव में भी थी, उसने अपने वो पर्सनैलिटी छुपाई, है ना? सेकंड कौन सा है? वो क्या चाहती है? सोशल सक्सेस चाहती है लोगों से, है ना? कि मुझे सारे बोले कि हाँ कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी अच्छी है, लेकिन लास्ट में उसने अपनी ब्यूटी भी गुम कर दी, है ना? और हमें क्या पता चलता है? there is a strong message, एक मैसेज है इस चैप्टर से। so it is ridiculous for people from ordinary means to copy the rich। अगर हम ऑर्डिनरी लोग हैं तो हमें ऑर्डिनरी ही रहना चाहिए, रिच बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। one should live within one's means, otherwise he or she invites unnecessary problems। जितना है उतने में खुश रहो, अगर ज्यादा किसी चीज को पाने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम्स होंगी, एंजाइटीज होंगी, कंफ्यूजन होगी हमारे लाइफ में। ठीक है, सेकंड मैसेज कौन सा है? that we should be what we are। जो है वैसे रहो। false pride is a cause of our suffering। झूठी शान हमारी सफरिंग बढ़ा सकती है ना? उसकी झूठी शान कैसी थी? जैसे उसका नेकलेस मिसप्लेस हो गया, है ना? उसे सारी उम्र लग गई, 10 साल। 10 साल बेटा कोई 10 दिन नहीं होते, 10 साल सोच के देखो कितने ज्यादा थे। वो नेकलेस का पैसा ही चुकाती रही, है ना? सो जो इसका जो स्मॉल मिस्टेक थी, दिस इज द स्मॉल मिस्टेक ऑफ मिसेस लॉयसल दैट मेक्स हर होल लाइफ माइजरेबल एंड डार्क। एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी लाइफ जो थी वो डार्क कर दी थी, है ना? सो सारी प्रॉब्लम्स हुई किसकी वजह से? उस फॉल्स नेकलेस की वजह से, है ना? सो ये बेटा हमने इसका जो थीम है वो डिस्कस किया, है ना? और जो वो नेकलेस था, नेकलेस किस चीज को सिंबलाइज करता है? वेल्थ को, स्टेटस को। ठीक है, अगर नेकलेस ना भी होता तो कौन सा पार्टी में उसमें वापस भेज देते कि हाँ आप इस पार्टी में आओगी नहीं,
तो भी वो अटेंड कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने एक फॉल्स प्राइड बनाने के लिए कि हाँ मेरा एक स्टेटस हो, वेल्थ हो, सभी मुझे देखें कि हाँ इसके पास कितना कुछ है, कितनी रिच है ना, झूठी शान के लिए उसने क्या कुछ किया और कैसे प्रॉब्लम में चली गई, है ना। तो जो जो वो नेकलेस है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है, अमीर लोगों को, वेल्थ को। और सेकंड जो है उस नेकलेस का कंक्लूजन क्या निकला वो हमने सब अपने पढ़ ही लिया है ना, बिकॉज शी लॉस्ट द नेकलेस एट द बॉल, है ना, उसने वो नेकलेस को लॉस्ट कर दिया। और जो उसकी डिजायर थी वो कैसी थी कि वो ऐसा लाइफस्टाइल स्पेंड करे, है ना, जिसमें बहुत ज्यादा वुमन अनेबल हो, सभी उसे अप्रिशिएट करें, है ना, उसके फाइनेंशियल मीन्स कुछ अच्छे नहीं होते, है ना, वो एक इंजॉयबल लाइफ स्पेंड करना चाहती है, वो क्या चाहती है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो, है ना, सब वो एंजॉय करे अपनी लाइफ में। और उसके हस्बैंड भी उतने एबल नहीं होते, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, अपने हस्बैंड के लेवल के बियॉन्ड जाती है। सो बेटा दिस इज योर चैप्टर, होपफुली सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चैप्टर्स बेटा हम यही कवर करेंगे। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट ग्रामर पार्ट। टुडे आई सेंट यू modals and the subject verb concord and you will do on your worksheet, कर देना, एग्जाम में आएगा, ठीक है। चैप्टर जो अभी तक जितने हो गए वो सीखने आएंगे, ठीक है बेटा, क्लियर। सभी को बेटा चैप्टर समझ आ गया? यस मैम। शान बोलो बेटा, शान, जशन, यस मैम। अपना बेटा वीडियो कैमरा भी ऑन कर लो, सारे बच्चे किया करो ऑन। ओके मैम। आ गया मैम समझ। ओके बेटा अटेंडेंस लगाओ अपनी। आप सभी के पास बेटा वर्कशीट्स हैं, वर्कशीट्स हैं बेटा सभी? यस मैम। इस बार आपको ग्रामर बिल्कुल भी नहीं कराई जाएगी नोटबुक्स के ऊपर, यू विल डू ऑन योर वर्कशीट। सो who didn't purchase yet, so purchase your worksheet as soon as possible, जल्दी से परचेज कर लो, अटेंडेंस लगाओ बेटा। शानप्रीत मैम। नेक्स्ट कौन है बेटा? कोमल, जशन 1709, महकप्रीत, बस इतनी बच्ची बड़े कम है। तो बेटा सभी को समझ आ गया चैप्टर, कोई डाउट है किसी को?